कुछ बरस पहले हमारी मित्र जब इंग्लैंड पहुंची तो वो कोकरमाउथ, जो कि वर्ड्सवर्थ का बर्थ प्लेस लेक डिस्ट्रिक्ट्स में, वहाँ पहुंच गई। तो वहाँ म्यूज़ियम है, तो इस म्यूज़ियम में जब वो गई तो उन्होंने जाकर के ये मग तलाश किया और जब लौट कर आई तो मुझे ये मग उन्होंने भेंट किया। उन्होंने कहा, भाई मुझे ख्याल आया कि आप तो रोमांटिक पोइट्री को पढ़ते ही नहीं, जीते हो। वर्ड्सवर्थ तो आपके दिल में बसते हैं, अब तो आप जीते भी वर्ड्सवर्थ की तरह से ही हो, तो मैं आपके लिए ये मग लाई हूँ, ये डैफोडिल। तो डैफोडिल्स जो है ये बड़ी पोएम है उनकी, वर्ड्सवर्थ की, और मैं सोचता हूँ कि इसको उन्हीं तरह के कुछ फूलों में जाके पढ़ा जाए। वो डैफोडिल्स तो नहीं, लेकिन हैं तो उसी तरह के फूल। तो मेरा ख्याल है ये देखिए, ये जो है ये डैफोडिल है और ये मग मेरे पास सुरक्षित है। मग सुरक्षित है, लेकिन मित्र हमारी दुनिया से रुखसत हो चुकी हैं कुछ बरस पहले, बस कुछ अरसा पहले। मेमोरीज कम अलाइव, कि कैसे उनके मन में आया होगा वहाँ पर कि ये मग तो मुझ तक ही आना चाहिए, ये मग मुझ तक है और हमेशा सुरक्षित रहेगा। और वो याद भी कि उनके मन में कैसे आया और क्यों उनको ये लगा कि ये मग मेरे कलेक्शन में होना चाहिए। तो मैं इसको बहुत इज़्ज़त देता हूँ। लेकिन मैं वो पोएम पढ़ रहा हूँ और वो पोएम जो डैफोडिल्स है वो उन्हीं को याद करते हुए पढ़ रहा हूँ। दुनिया से रुखसत हो जाते हैं मित्र परिचित अपने, लेकिन यादें रह जाती हैं, बड़ी मधुर सी यादें। हस्बैंड वाइफ टीम मेरे इतने करीबी थे, परिवार का हिस्सा थे, और दोनों ही रुखसत हो गए। दोनों, पहले हस्बैंड रुखसत हुए और फिर वाइफ रुखसत हुई। तो ये मेमोरी जो मेरे मन में आ रही है उन दोनों के लिए है कि मैं इस पोएम को पढूं, डैफोडिल को, और वर्ड्सवर्थ को भी इस तरह से खिराज अक़ीदत दे दूं। Watching these flowers here, I am reminded of something that is associated with my childhood. I remember in class 10, our teacher told us that today I am going to recite a poem named Daffodils, and it's by William Wordsworth. Since I was not a very intelligent person, I didn't have much idea what he's talking about or what he wants to recite. But he started reciting a poem, I Wandered Lonely as a Cloud, by William Wordsworth. I wandered lonely as a cloud that floats on high over vales and hills, when all at once I saw a crowd, a host of golden daffodils. Beside the lake, beneath the trees, fluttering and dancing in the breeze, continuous as the stars that shine and twinkle on the Milky Way, they stretched in never-ending line along the margin of a bay. 10,000 that saw at a glance, tossing their heads in sprightly dance. The waves beside them danced, but they outdid the sparkling waves in glee. A poet could not but be gay in such a jocund company. I gazed and gazed, but little thought what wealth the show to me had brought. The wealth. For oft when on my couch I lie, in vacant or in pensive mood, they flash upon that inward eye, which is the bliss of solitude, and then my heart with pleasure fills and dances with the daffodils. Dances with the daffodils. That time I failed to understand the meaning of it all, but today when I have grown up over the years, I can visualize the beauty of daffodils, because in our own country we call them sarson ka phool. This is sarson ka phool, and this is in full bloom these days. So be it daffodil or be it sarson ka phool, nature gives you in bounty. It's all up to you how you receive. Over the years,
I have been traveling a lot and watching all these scenes and enjoying the beauty of nature. And someone, a wise man, sometimes said, back to nature. If you really want to live happily, you have to go back to nature. And that is what I have been doing. So, daffodil reminded me of it all. So I thought it proper to rewind the memory tape. Class 10, ages ago that was. That was in 1965, 66. And today I can enjoy, I can feel the bliss that Wordsworth must have felt that time. I am enjoying it today. Time to move further. Here we go. बहुत खाक दुनिया की छानी थी हमने, अब तक किसी की ना मानी थी हमने, अब तक किसी की ना मानी थी हमने। धोखे में दिल कैसे आ गया, सोचा था प्यार हम ना करेंगे, सूरत पे यार हम ना मरेंगे, फिर भी किसी पे दिल आ गया, सोचा था प्यार। मेरा ख्याल है कि इंडिविजुअल से हम प्यार करें वो एक चीज़ है, उसका लुत्फ अलग है, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट से हम प्यार करें तो वो ज़्यादा देर तक और दूर तक हमारे साथ रहते हैं। इतने सारे खिले हुए फूलों को देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे जन्नत और क्या होती होगी, बाग़ बहिश्त और क्या होता होगा। और बड़ा अच्छा लग रहा है आकर के। मैं खुश भी महसूस कर रहा हूँ कि मैं आ गया उत्तर भारत में, उत्तरांचल में, और इन फूलों के बीच में मैं अपने आप को बहुत ही खुश महसूस कर रहा हूँ। एक सुखद अनुभव, एक अनुभूति, और नेचर में आकर के साइलेंस, सोलेस, सीरेनिटी, व्हाट एल्स डज वन नीड इन लाइफ? ओह, नथिंग। मुद्दुमलाई के जंगल में ये हिरणों को देखना एक सुखद अनुभव है। हम इनके इतना करीब पहुंच गए हैं, लेकिन इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि मालूम है कि हम शुद्ध शाकाहारी इंसान हैं। और इतने मज़े से ये लोग घूम रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा है। ये देखिए, स्पॉटेड हिरण दिखते कम हैं, लेकिन सचमुच ये एक अद्भुत दृश्य है इनको देखना। वाह, ये पीछे की तरफ एक पूरा इनका झुंड है और बहुत अच्छा है। मुद्दुमलाई में रुकना वैसे अलाउड नहीं है, लेकिन फिर भी हम रुक जाते हैं, देख रहे हैं, और इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। हम आगे चल रही है, लेकिन ये वहीं के वहीं, और बड़े इत्मीनान से बहुत खूबसूरत दृश्य मिल गया मुद्दुमलाई फॉरेस्ट ऊटी से लौटते हुए, जिनमें किस्मत साथ साथ चलती है। एक के बाद एक हिरन दिखाई दे रहे हैं, एक के बाद एक। वो सामने पीछे पूरा झुंड है उनका, और इधर भी, इधर भी। अब हम बांदीपुर में आ चुके हैं, और बांदीपुर में दिख रहे हैं ये हिरन इत्मीनान से घूमते हुए, बेफिक्र होकर। इधर भी हैं, इत्मीनान है और मज़े से घूमते हैं, खूबसूरत लगते हैं। गज़ाल, पर्शियन में तो इन्हें गज़ाल कहा जाता है, बहुत ही खूबसूरत। ला रा 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 रा, la da 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 da. La da 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 da. मेरी दुनिया, मेरे सपने मिलेंगे शायद ये,
कुन्नूर में आकर के इन टी गार्डन्स को देखना एक सुखद अनुभव होता है। हिंदी फिल्म्स में टी गार्डन्स कितने इस्तेमाल होते थे ऊटी के, कितनी ही फिल्म्स यहाँ की शूटिंग हुई। प्यार का मौसम में शशि कपूर साहब गा रहे हैं, छैया छैया करते हुए शाहरुख खान जा रहे हैं, और इन दौर में तो न जाने कितनी सारी फिल्म। ये टी गार्डन्स इतने सुखद दिखाई देते हैं तो देखकर कितने मनाजिर याद आते हैं, कितनी फिल्म्स याद आती हैं। आज मैं यहाँ आया हूँ और मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है, क्योंकि ये ज़िंदगी के जैसे रास्ते हैं ना, टेढ़े मेढ़े से, ये वैसे ही रास्ते हैं। यहाँ से जाओ, इधर से आओ, यहाँ से निकलो, फिर इधर और इधर और फिर इधर, और फिर अब इसके बाद सीधे रास्तों पे आ जाओ। मैं जरा आपको एक क्लोज व्यू दे दूं जल्दी से। वाह, खूबसूरत मनाजिर, बहुत दिलकश। कुन्नूर ऊटी से लगभग 15-16 किलोमीटर आगे। दिन है 13 फरवरी, बरस है 2021। कुन्नूर। पीछे हाँ, पाइकरा फॉल ऊटी से लगभग 24 किलोमीटर पहले एक बड़ा ही खूबसूरत फॉल है। मैं तो मिस ही कर रहा था, लेकिन अचानक मैंने चलते चलते सोचा भाई इतना सुंदर सुना है, लेकिन जाकर के आकर के यहाँ देखा तो ये अपने आप में एक विशाल फॉल है। और यहाँ आना मेरे लिए खुशी की बात है, और इतना जल सुखद है, जबकि कहीं दूर तक बारिश नहीं, इससे लेक है और लेक में से ये निकल के आता है। 14 फरवरी वैलेंटाइन में दुनिया अपनी मर्जी से जो जीना है जहाँ मर्जी जाएँ, तो हमारे लिए पाइकरा फॉल में आ जाना एक सुखद और खुशनुमा अनुभव और अनुभूति। आइए आगे बढ़ते। भाई हर फॉल का जोग फॉल या न्यागरा फॉल होना जरूरी थोड़ी है, ये भी मजदूर है। देखिए अपनी रिदम है एक आबशार की, बहुत खूबसूरत है। मेरी दुनिया मेरे सपने मिलेंगे शायद यहीं। जी हाँ, जर्रे जर्रे में नूर बिखरा है, कहीं चले जाइए उससे कुछ दिखता ही है। सीरीनिटी, साइलेंस, पाइकरा फॉल। ये ऊटी से थोड़ा पहले, मतलब लगभग 24 किलोमीटर पहले ये पाइकरा फॉल है। पाइकरा फॉल अच्छा है, डिसेंट है, साफ सुथरा दिखाई दे रहा है। एक झील में से निकल रहा है ये फॉल। काफ़ी सारे लोग आते हैं आप देखने यहाँ पर, अच्छी खासी रौनक जमने लगी है। हाँ, वो ज़माने गए लोग जब घर बैठ जाते थे, अब तो यहाँ घूम रहे हैं पाइकरा फॉल पर सब। अच्छा है, सूदिंग है, सूदिंग। वाह वाह, थे तो शरारती साहिर साहब भी। हसीन चंपई पैरों को जब से देखा है, नदी की मस्त सदाएं बुला रही है तुम्हें। ये वादियाँ ये फिजाएं बुला रही है तुम्हें। खामोशियों की सदाएं बुला रही है तुम्हें। ये वादियाँ ये फिजाएं बुला रही। साहिर साहब की सेंटिनरी में ये गीत को गाया जाना बिल्कुल सही है। 8 मार्च को 100 बरस के हो जाएंगे साहिर साहब। क्या रुमानियत है इस ख्याल में। ये दूसरा हिस्सा है पाइकरा फॉल का और ये पहला, और दोनों मिलकर को इसको विशाल बना देते हैं। दोनों मिलकर, दोनों ही खूबसूरत हिस्से हैं, ये भी और ये भी।
मेरा ख्याल है कि आसपास के फॉल में इसकी तो अलग ही जगह है, पायकरा फॉल की। दिक्कत क्या है कि शिवा समुद्र जाते हैं जब हम बेंगलोर थे तो वो नीचे तक नहीं जाने देते, ऊपर ही फेंस लगा दिया। यही जोग फॉल का भी हाल है। लेकिन ये पायकरा फॉल जो है इसमें मैं इतने पास आ गया हूँ कि ये मेरे से 20 फीट के फासले पे है और इतने मज़े से मैं इसको देख रहा हूँ। ये बहुत ही खूबसूरत फॉल है। वाह, ला ला रा ना 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 ला 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 ला, ये वादियाँ ये फिजाएं बुला रही है तुम्हें, ये वादियाँ ये फिजाएं बुला रही है तुम्हें, खामोशियों की सदाएं बुला रही है तुम्हें। ये तमिलनाडु में है, पायकरा तमिलनाडु में, ऊटी से लगभग 24 किलोमीटर पहले, लेकिन काफ़ी खूबसूरत फॉल है। मैंने तो कभी सुना भी नहीं था इसका नाम, लेकिन यहाँ आकर जो देख रहा हूँ तो यहाँ से हिलने का मन नहीं कर रहा। मैं सोच रहा हूँ कि आज वैलेंटाइन का पूरा दिन यहीं बिता दिया जाए, कोई नुकसान नहीं इसमें। कोई अपॉइंटमेंट तो मेरा ख्याल है नहीं कहीं आज, किसी वैलेंटाइन से तो मिलना नहीं है, तो क्यों ना दिन यहीं बिता दिया जाए। बहुत ही दिलचस्प खूबसूरत है बहुत बहुत बहुत। दिल ढूंढता है फिर वो ही फुर्सत के रात दिन, बैठे रहे तसब्बुरे जाना किए हुए। जी हाँ, तसव्वुर किया तन्हाई में बैठा जा कर के, और बहुत ही अच्छा वक्त बीता ऊटी में। लेकिन उसके कुछ ही दिनों के बाद मुझे याद आया, यार अब नॉर्थ में जाने का वक्त आ गया है। और मैं ऊटी में कुछ दिन बिताने के बाद नॉर्थ से होते हुए पहुंच गया मनाली। तो मनाली के मनाज़र पे मुझे याद आते हैं, बहुत खूबसूरत लम्हे बीते थे ऊटी में भी, मनाली में भी। आज वक्त जब धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा है, बहता जा रहा है, तो वो लम्हे याद आते हैं। वो लम्हे जो खुशगवार थे, जिनमें ज़िंदगी मुस्कुराती गुनगुनाती गाती थी, याद कर रहा हूँ उन लम्हों को। दिलकश मनासिर जिंदगी को तामिंदा रखने का एक जरिया। प्रकृति तक चले आना, उसको अपने में उतार लेना, फिर हालात कुछ भी हों उनमें जीने की आदत डाल लेना। यही सिखाती है कुदरत, यही सिखाते हैं ये मनासिर। इतने दिलकश, इतने दिलकश। सचमुच ये कौन चित्रकार है जिसने ये चित्र बनाए हैं? क्या जरूरत है जानने की, जिसने भी बनाए हैं खूबसूरत खूबसूरत खूबसूरत।
और अगली लाइन में उन्हें ख्याल आया कि एक बार उन्हें अल्लाह की कुर्सियों को बड़े से रखे जाते देखा था। उन्होंने क्या लिखा इसके आगे, कि जैसे अल्हड़ चले प्यारे प्यारे ये नज़ारे खुमार है हर कहीं, सुहाना सफर और मौसम हसी, हमें डर है हमको न जाए, सुहाना सफर और मौसम हसी। वो गोरी नदियों का चलना मचल कर, के जैसे अल्हड़ चले पी से मिलकर, प्यारे प्यारे ये नज़ारे खुमार है हर कहीं, सुहाना सफ़र और ये मौसम, हमें डर है हम खो न जाए कहीं। अब मेरे ख़्याल से मेरे कुछ दोस्त ये सोचेंगे आज सुबह से मैंने कितने ही गीत तलत महमूद साहब के गाए हैं, लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि मैं अब मुकेश साहब का गीत गा रहा हूँ। मैं पहले भी बता चुका हूँ, फिर आपको बता दूँ। 1958 में जब फिल्म बन रही थी मधुमती, तो बिमल रॉय साहब चाहते थे कि ये गीत तलत महमूद साहब गाएँ और ख्वाहिश दिलीप कुमार साहब की भी यही थी, लेकिन सलील चौधरी साहब का ये बिल्कुल ख्याल था कि ये गीत जो है ये मुकेश साहब के लिए है, और उन्होंने फिर मना भी लिया दिलीप साहब को भी और बिमल रॉय साहब को भी। सोच के देखिए कि अगर ये गीत तलत महमूद साहब ने गाया होता तो उनका अंदाज़ कितना अलग होता, मुकेश साहब ने गाया है तो उनका अंदाज़ कितना अलग है। इन नदियों को देखकर बड़ा मन प्रफुल्लित होता है, और ये छोटे छोटे टुकड़े और उधर से निकलता हुआ चाँद। ये शाम बड़ी खूबसूरत है। आज सुबह से ही क्या, मैं कल रात से ही तलत साहब को याद किए जा रहा हूँ। रात 12 बजे से ही शुरू कर दिया था, फिर 1 बजे, फिर 3:45 बजे, फिर दिन भर, और न जाने, क्योंकि मैं सारे वीडियो तो भेज भी नहीं सकता महफिलों में। नॉट मैनी पीपल आर इंटरेस्टेड इन दीज पोस्ट, यू नो। लेकिन मुझे लग बड़ा अच्छा रहा यहाँ कर, बहुत ही दिलचस्प मंजर है। और वो देखिए सामने कितना खूबसूरत है ये ख्याल कि आप वहाँ हैं जहाँ बर्फ़ से ढके पहाड़ों को बादल चूम रहे हैं, दूर वादी में दूधिया बादल किस तरह से हमागोश हैं पहाड़ों के। प्रकृति भी दरअसल मोहब्बत चाहती है, इश्क चाहती है, प्यार चाहती है, और यही पैगाम प्रकृति हमेशा देती है। ला 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 रा 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 रा, सुहाना सफ़र और ये मौसम हसी, हमें डर है हम खो न जाए कहीं। ये ब्यास नदी है, ब्यास ऋषि के नाम पे है ये ब्यास नदी। बहती रहती है, जल कम इसलिए है कि ग्लेशियर अभी जमे हुए हैं। ग्लेशियर गर्मी से पिघलेंगे और फिर आप देखेंगे कि इसका जो प्रवाह है और तेज़ हो जाएगा। मैं तो ऑलमोस्ट कितनी ही बार यहाँ आकर के यही महसूस करता हूँ। मनाली एक ऐसा हिल स्टेशन है जिसके बीच से, शहर के बीच से होती हुई नदी जाती है, और कोई ऐसा हिल स्टेशन मुझे अपने देश में नज़र आता नहीं। झील भी हो सकती है, समंदर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये जो प्रवाह है, इसमें जो बहाव है, इसमें जो गति है, इसमें जो रिदम है, ताल है, वो मुझे बड़ा मुझे भागा फिर 6 तारीख को शुरू किया था ये सिलसिला, 6 फरवरी को, और आज 24 हो गई। इससे आगे ज़िंदगी कहाँ ले जाएगी कुछ मालूम नहीं। मेरा ख्याल है कि कुछ दोस्तों को तो ये मनाजिर देखकर वाकई अच्छा लगता है, तभी मैं ये पोस्ट करने की हिम्मत भी कर दिया करता हूँ, क्योंकि हर किसी के लिए मुमकिन नहीं है कि बेंगलोर से लगभग 2400 किलोमीटर चलकर यहाँ पहुँचा जाए और फिर यहाँ रहा जाए, फिर यहाँ की ठंड को सहा जाए, और फिर वो सब कहा जाए जो मैं कहता हूँ। यही है लुत्फ़े बंजारगी, और सच ये कि गाता जाए बंजारा, जो जीवन से नहीं है गाता जाए। हाँ, बहुत खूब, बहुत बढ़िया, क्योंकि ऐसा तो मंजर कभी देखने को मिलता है।
बादल दिखाई दे रहा है, हम आगोश कर रहा है बर्फ को, वहाँ बर्फीले पहाड़ और बादल का संगम। ये मनाली है, बड़ी खूबसूरत शाम है यहाँ पर, और इधर आकर के मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। लेकिन इतनी ठंड हो चुकी है अब यहाँ से, एक टेम्परेचर थोड़ी देर में होने वाला है 1, तो चलते हैं यहाँ से आगे बढ़ते हैं और यही बेहतर है। ये इसमें स्पेस आ जाता है। ओके ओके ओके। बर्फ आ जाती है, पीछे स्नो हो रहा है, देखो सामने स्नो हो रहा है ना ऊपर। हाँ, वो पहाड़ियों पे बर्फ पड़ रही है, कुलदीप ने बताया है। ये पड़ चुकी बर्फ है, वो पड़ती हुई बर्फ है। अपने जज्बात पे तो कई बार बर्फ पड़ चुकी है, लेकिन अब हमें आदी से हो गए हैं इस बात के, कोई फर्क नहीं पड़ता, मज़ा आता है। जहाँ जाओ, कहीं चले जाओ, लुत्फ लिए जाओ। काफ़ी दिनों से सोच रहा था कि सोलांग जाऊँ, लेकिन वक्त नहीं मिल रहा था। आज इधर आके मुझे बड़ा अच्छा लगा। वो देखो पीछे का शॉट दिखाओ जरा, वो बहुत सुंदर है। वो अपना मढ़ी रोहतांग गुलाबा है, वो मेन पॉइंट है वहाँ। कौन सा पॉइंट है? मढ़ी गुलाबा रोहतांग। रोहतांग जाते हुए पड़ता है। रोहतांग आजकल सब बंद है, तो मैं बर्फ के मजे ले रहा हूँ। वो जो बीच में देखो सामने पेड़ के बीच में उस बर्फ का नेचुरल शिवलिंग दिख रहा है। अच्छा, कहाँ पे? बर्फ के वो सामने देखो। अच्छा, वो बीच में। हाँ, अच्छा, वो जो बना है। अच्छा, ये बना था पर इस कुछ खास सही ढंग से नहीं बना। जब जा रहे हैं लोग वहाँ पर। आज तक बना था सही, मतलब बिल्कुल प्रॉपरली था। अब घट रहा है ना, बर्फ कम हो रहा है। बर्फ हम सफर कोई घर मिले भी कहीं, दोनों चलते रहे तन्हा तन्हा, दोनों चलते रहे तन्हा तन्हा। जिंदगी क्या इसी को कहते हैं, जिस्म तन्हा है और जान तन्हा, चांद तन्हा है आसमां तन्हा, दिल मिला है कहाँ कहाँ तन्हा। जलती बुझती सी रोशनी के परे, जलती बुझती सी रोशनी के परे, सिमटा सिमटा सा एक मकान तन्हा, राह देखा करेगा सदियों तक, छोड़ जाएंगे ये जहां तन्हा, चांद तन्हा है आसमां तन्हा, दिल मिला है कहाँ कहाँ तन्हा। एक दर्द महाजबी का भी था, बचपन से ही दर्द में मलबूस हो गई थी उसकी ज़िंदगी। बस ख्वाहिश और ख्वाब कुछ इस तरह के थे, चलो दिलदार चलो चांद के पार चलो। 40 बरस की उम्र पूरी नहीं की और महाजबी दुनिया से रुखसत हो गई। कितनी अजीब ज़िंदगी थी महाजबी की, जो आया ज़िंदगी में कुछ लेकर गया, दिया किसी ने कुछ था ही नहीं। सादगी इतनी थी शायरी में। बड़ी बेचारी है मीना कुमारी, जिसको लगी है दिल की बीमारी। अब ये दिल की बीमारी तो चीज़ ही ऐसी है, ऐसा न हो ये दर्द बने दर्द ला इलाज, ऐसा न हो कि तुम भी मुदावा ना कर सको।
चांद की तन्हाई कितनी अलग है, इतने सारे तारे उसके चारों तरफ रहते हैं, फिर भी वो खामोश सा तकता रहता है। न जाने किसे चाहता है, न जाने क्यों चाहता है, न जाने कितना चाहता है ये चांद। उगा था, बस अब कुछ देर में गुम हो जाएगा। अभी तो सुबह के 3:45 बजे हैं, दैट इज़ 3:45। बात फिर वही जानता था कि थोड़ी देर को झपकी लगेगी और करवटें बदलूंगा और फिर उठकर चांद को देखने लग जाऊंगा। ये भी मेरी खुशबख्ती है कि चांद दिखाई दे रहा है। आज रात को उगेगा 14वीं का चांद। आज है 26 फरवरी और कल होगी पूर्णिमा। मैजेस्टिक कुछ तो है चांद में, निसंदेह, बेशक। कितना तन्हा है चांद, और कितनी तन्हा होती है कितने लोगों की ज़िंदगी। और उस तन्हाई को देखकर वो ये सोचते हैं, तन्हाई ज़िंदगी की परछाई है, जिसे मिलती है बस उसे मिलती ही है, फिर उसको ओढ़कर ज़िंदगी जीने की आदत डालनी पड़ती है, जैसे महाजबी के साथ हुआ। इतने दर्द अपने में समेटे, महाजबी दुनिया से रुखसत हो गई, लेकिन अपने पीछे छोड़ गई शायरी का एक ऐसा ख़जाना जिसमें से एक नगीना अभी अभी मैंने गुनगुनाया। खुद गाती थी। आइए दिन को शुरू करते हैं थोड़ी देर बाद, अभी तो वक्त काफ़ी बाकी है। ये है मनाली, और मनाली की शहर होने वाली है। तुमको नींद आएगी, तुम तो सो ही जाओगे, किसका ले लिया है दिल ये भी भूल जाओगे। ये तो कह दो एक बार, ख्वाब में तो आओगे, तुम तो दिल के तार छेड़ कर हो गए बेखबर। चांद के तले जलेंगे हम ऐ सनम रात भर, तुम तो दिल के तार छेड़ कर। मैं फूल टांक रहा हूँ तुम्हारे जूड़े में, तुम्हारी आंख मुसर्रत से झुकती जाती है। न जाने आज मैं क्या बात कहने वाला हूँ, ज़बान खुश्क है, आवाज़ रुकती जाती है। मेरे गले में तुम्हारी गुदाज बाहें हैं, तुम्हारे होंठों पे मेरे लबों के साए हैं। मुझे यकीन कि हम तुम कभी न बिछड़ेंगे, तुम्हें गुमान कि हम मिल के भी पराए हैं, तुम्हें गुमान कि हम मिल के भी पराए हैं। ये है साहिर की रुमानियत, उनका रोमांस। मनाली में इस वक्त रात के लगभग 1:45 बजे का वक्त है। 23 तारीख 24 में कन्वर्ट हो चुकी है, और 24 तारीख को इस आलम में साहिर के ख्यालात याद आते हैं, उनके जज्बात याद आते हैं। स्याह रात की परछाइयाँ उभरती हैं। चांद मेरा बादलों में खो गया, चांद मेरा बादलों में, मेरी दुनिया में अंधेरा हो गया, चांद मेरा। वहाँ बादलों के पीछे मेरा चांद खो गया। इस वक्त सुबह के 3:45 बजे हैं। 24 फरवरी का दिन है। 1924 का बरस था वो। जिस कलाकार का गीत मैं गा रहा हूँ उनका नाम तलत महमूद। आज उनकी सालगिरह है तलत साहब की। अभी 1 बजे तक चांद मौजूद था
और मैं गाने गा रहा था चांद को देखकर, लेकिन अभी सुबह 3:45 बजे चांद गायब हो गया, चांद मेरा बादलों में खो गया। ये वो कलाकार हैं जिन्होंने एक ज़माने में गाया था, ये हवा ये रात ये चांदनी तेरी एक अदा पे निसार है, मुझे क्यों न हो तेरी आरज़ू, तेरी जुस्तजू में बहार है, ये हवा ये रात ये चांदनी। एकदम मखमली आवाज़ थी। आवाज़ क्या थी, ऐसा लगता था जैसे मखमल का एक स्थान खुला चला जा रहा है। बहुत गाया, इतने खूबसूरत गीत गाए, इतने दिलकश गीत गाए। लेकिन फिर एक फिल्म जहां आई, उसमें बड़े दिलकश गीत गाए थे। मदन मोहन जी की धुनें थी, राजेंद्र कृष्ण जी के अल्फाज थे। न जाने क्या हुआ, फिल्म नहीं चली और आज भी हम उन गीतों को गुनगुनाते हैं। लेकिन वहाँ से तलत साहब का करियर ख़त्म हो गया। उसके बाद एक अरसे तक तन्हाई में ज़िंदगी जी, स्टेज प्रोग्राम करते रहे, लेकिन वैसी आवाज़ भी फिर कभी नहीं आई। हम स्टेज शोज़ की बात करते हैं जिसमें अलग अलग कलाकार उन गीतों को गाते हैं जिन्हें किशोर का साहब या रफ़ी साहब या मुकेश साहब ने गाया, और उनके गीतों को गाते हैं और फिर उस नाम से मशहूर भी हो जाते हैं। आज तक कभी कोई ऐसा कलाकार नहीं आया जो तलत साहब के गीतों को गाता हो और उनकी आवाज़ के आसपास से भी गुजरता हो। ये कमाल तलत साहब का था। और दूसरी बात ये कि मेरा ख्याल है 800 के करीब गीत हैं उनके हिस्से में, लेकिन एक गीत भी कभी हल्का नहीं है। ये खुशी आज तक किसी और गायक को नहीं मिली। कोई हल्का गीत जिंदगी में गाया ही नहीं। रात ने क्या क्या ख्वाब दिखाए, रंग भरे सो जाल बिछाए, आँखें खुली तो न रह गए गम के काले साए, रात ने क्या क्या रात ने क्या क्या ख्वाब दिखाए। ज़िंदगी ने भी कितने ख्वाब दिखाए। बहुत मकबूलियत हासिल की, सभी के लिए गाया, सभी के लिए गाया। जो तीनों कलाकार उस ज़माने के टॉप क्लास माने थे, उनमें जाते थे, उनके लिए भी गाया, औरों के लिए भी गाया, और खूब नाम किया तलत साहब ने। लेकिन फिर एक दिन चांद आसमां में खो गया और इस दुनिया की भीड़ में तलत साहब की आवाज़ खोई पहले, और उसके बाद तलत साहब भी दुनिया से रुखसत हो गए थे। लेकिन आज उनकी सालगिरह है, इसलिए हम उनके गीतों को याद करें। इतने दिलकश गीत गाया करते थे। अभी थोड़ी देर पहले चांद यहाँ था और फिर मुझे याद आ रहा था, तुम तो दिल के तार छेड़ कर हो गए बेखबर, चांद के तले चलेंगे हम ऐसा। मतलब ये गीत लता जी ने भी गाया है और ये गाया है तलत जी ने भी। बहुत कमाल के कलाकार थे, बहुत। मुझे तो बेहद पसंद है। कोई गीत भी उनका मुझे सुनने को मिलता है मैं सुनता हूँ। बहुत पहले ही उनका एक गैर फिल्मी गज़ल मकबूल हुई थी, तस्वीर तेरी दिल मेरा बहला न सकेगी। बस ये शुरुआत थी और इसके बाद जहांगीर के गीतों तक। उसके बाद 1971-72 के करीब लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब ने भी एक ड्यूएट लता जी के साथ गवाया था। लेकिन कभी कभी होता है जब मुट्ठी से रेत फिसल जाती है तो फिसल जाती है, और ऐसे ही कुछ। वो कितना अच्छा गीत गाया था, मोहब्बत की कहानियाँ सुनाने लगी हैं जवानियाँ, हमारे तुम्हारे प्यार पर खुदा की रहे मेहरबानियाँ। यहाँ खोया है वो चांद, फिर नहीं उगेगा। अब थोड़ी देर में ख़त्म हो जाएगा, रात को फिर उगेगा, लेकिन ऐसा डूबता है कभी कभी चांद, फिर नहीं उभरता। ऐसा ही कुछ तलत साहब के साथ हुआ। बेहतरीन बेहतरीन कैसे कलाकार थे तलत साहब, हमेशा याद आते हैं। आज हम उन्हें याद करते हैं, उनके गीतों को याद करते हैं। 24 फरवरी, अब वो 1924 था,
आज 2021 है। मनाली की ये खूबसूरत शहर है। 4 बजने जा रहे हैं सवेरे सवेरे। ये धूमिल से चिराग हल्के हल्के बुझते बुझते कुछ बचे हैं, और रात को तो ये बहुत सारे थे। ऐसा ज़िंदगी में भी होता है, कितने सितारे चमकते हैं फिर डूब जाते हैं।